ایک وقت کا قصہ ہے، سوراب پور گاؤں میں ایک موبائل فون کی دکان تھی جس میں بہت مہنگے موبائل ہوتے تھے، اتنے کہ گاؤں کے لوگ انہیں خرید ہی نہیں پاتے تھے۔ سب لوگ پریشان تھے کہ ان سے موبائل کوئی خرید ہی نہیں سکتا، پھر یہ دکان کیسے چل رہی ہے۔ مگر گاؤں والے اس بات سے واقف نہیں تھے کہ اس دکان کا اصل مقصد کچھ اور ہی ہے۔ دکان کا مالک کمہار سیٹھ تھا جو اپنے بھائی کے ساتھ مل کر کام کرتا تھا۔ کمہار سیٹھ کا ایک بیٹا تھا جس کا نام میٹھا تھا۔ وہ سارا دن بائک پر آوارہ گردی کرتا تھا اور آتی جاتی لڑکیوں کو چھیڑتا تھا۔ اسی گاؤں میں بٹو نام کا لڑکا رہتا تھا۔ کیا ہوا بیگم، تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ سب خیر تو ہے؟ بیٹو میں اپنے دوست کے ساتھ جا رہی تھی تو آج پھر کمہار سیٹھ کا بیٹا میٹھا میرے پیچھے لگ گیا اور ہمیں بری طرح سے چھیڑنے لگا۔ بیگم یہ ایسے باز نہیں آئے گا، مجھے کمہار سیٹھ کو جا کر اس کی شکایت لگانی پڑے گی۔ ہاں بیٹا ٹھیک ہے، تو اس کے پاس جا اور اسے کہہ کہ اپنے بیٹے کو منع کرے ایسی حرکتیں کرنے سے۔ جی ماں جی، میں ابھی جاتا ہوں۔ بٹو گھر سے نکلتا ہے اور اس کی موبائل شاپ پر آ جاتا ہے۔ ہاں لڑکے، کون سا موبائل لینا ہے؟ کمہار سیٹھ صاحب، میں موبائل لینے نہیں بلکہ آپ کے بیٹے میٹھے کی شکایت لگانے آیا ہوں۔ وہ روز جب بھی میری بیوی بازار جاتی ہے اسے چھیڑتا ہے۔ تو اس میں میرے بیٹے کا کیا قصور ہے؟ قصور تو تیری بیوی کا ہے جو اکیلے بازار جاتی ہے۔ جب اس طرح بازار میں گھومے گی تو لوگ چھیڑیں گے ہی۔ سیٹھ صاحب، میں تو آپ کے پاس اس لیے آیا تھا کہ آپ اپنے بیٹے کو سمجھائیں گے، مگر آپ تو الٹا مجھے ہی غلط کہنے لگ گئے۔ تو غلط کو غلط ہی کہوں گا۔ تم غریب لوگوں کا یہی کام ہوتا ہے، اس طرح کی حرکتیں کر کے تم ہم جیسے امیر لوگوں سے پیسے مانگتے ہو۔ دفع ہو جاؤ اور اپنی بیوی کو قابو میں رکھو۔ بٹو کو یہ بات سن کر بہت دکھ ہوتا ہے اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ وہ تھوڑا آگے آتا ہے تو اسے اس کا باپ مل جاتا ہے جو رکشہ چلاتا تھا۔ او بیٹو، بیٹا کہاں سے آ رہا ہے؟ ابو جان، کمہار سیٹھ کے پاس سے آ رہا ہوں۔ آج پھر اس کے بیٹے نے میری بیوی سے بدتمیزی کی تھی، اس کی شکایت لگانے گیا تھا مگر وہ تو آگے سے مجھے ہی برا بھلا کہنے لگ گیا۔ بیٹا یہ تو اس کی بات بہت غلط ہے، تو چل میرے ساتھ، میں اس سے بات کرتا ہوں۔ نہیں ابو جان، وہ آپ سے بھی بدتمیزی کرے گا، آپ گھر چلو۔ وہ رکشے میں بیٹھ کر گھر کی طرف نکل جاتے ہیں۔ تھوڑا آگے آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ میٹھا اپنی بائک پر جا رہا ہوتا ہے اور ایک عورت کا پرس چھین لیتا ہے۔ ہائے میرا پرس چھین لیا، اس بغیرت نے میری مدد کرو۔ ابو جان، رکشہ روکو اس عورت کے پاس۔ وہ رکشہ روکتا ہے۔ آنٹی آپ فکر مت کریں، میں ابھی آپ کا پرس لے کر آتا ہوں، آپ یہیں پر انتظار کرو۔ چلو ابو جان، اس کے پاس رکشہ لے کر چلو۔ وہ رکشہ دوڑاتے ہیں اور میٹھے کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ اور میٹھے بغیرت رک، عورت کا پرس چھینتا ہے۔ میٹھا رک جاتا ہے، پھر بٹو آتا ہے اور اسے 2-4 زور زور سے تھپڑ مارتا ہے اور اس سے پرس چھین لیتا ہے۔ میٹھے کا غصے کی وجہ سے منہ لال ہو جاتا ہے۔ او موٹے، تو نے یہ اچھا نہیں کیا، تو شاید مجھے جانتا نہیں ہے میں کون ہوں۔ میٹھا نام ہے میرا، کمہار سیٹھ کا بیٹا ہوں۔ ان چپیڑوں کا بدلہ تو میں ایسا لوں گا کہ تو یاد رکھے گا۔ میٹھا غصے میں وہاں سے چلا جاتا ہے۔ بٹو وہ پرس اس عورت کے پاس لے جاتا ہے۔ بہت بہت شکریہ تمہارا، تم نہ ہوتے تو وہ میرا پرس چھین لے جاتا۔ اس میٹھے نے تو پورے گاؤں کی عورتوں کو تنگ کیا ہوا ہے۔ آنٹی آپ فکر نہ کریں، آج اس کی اچھی دھلائی ہو گئی ہے، امید ہے آج کے بعد ایسا نہیں کرے گا۔ وہ اسے پرس دے کر گھر آ جاتے ہیں۔ کمہار سیٹھ کو اس کی شکایت لگا دی۔ ارے بیگم، میں نے کمہار سیٹھ کو اس کی شکایت لگائی تو وہ الٹا مجھ پر ہی برس پڑا، لیکن میں نے اس کے بیٹے کی ایسی دھلائی کی ہے کہ اب کسی کو نہیں چھیڑے گا۔ کیا مطلب، تو نے ایسا کیا کیا ہے؟ پھر بٹو ان کو ساری بات بتاتا ہے جسے سن کر وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ ارے بیٹا، یہ تو نے کیا کیا؟ وہ بہت طاقتور لوگ ہیں، تجھے نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں۔ ہاں بیٹو، آپ کو ایسا نہیں کرنا
करना चाहिए था। बिट्टू ने बिल्कुल ठीक किया है। जब तक ऐसे लोगों को सबक न सिखाया जाए ये बात नहीं आते। वहाँ शाम में कुम्हार सेठ अपने घर पर बैठा होता है तो मीठा वहाँ पर आ जाता है। वो बहुत गुस्से में होता है। क्या हुआ मेरे लाल, सब खैर तो है? तू इतने गुस्से में क्यों लग रहा है? पापा जानी, बात ही गुस्से वाली है। उस मोटे दो कौड़ी के इंसान ने मुझे इतनी जोर की चपेट मारी है कि पापा जानी मेरा बूथा ही हिल गया है। वो मोटा तो आज दुकान पर भी आया था तेरी शिकायत लेकर। उसकी ये हिम्मत कि उसने तुझे थप्पड़ मारा। तू चल मेरे साथ, मैं भी उसे सबक सिखाता हूँ। वो मुलाजमों के साथ बिट्टू के घर पहुँच जाते हैं। अबू यही है वो मोटा भालू जिसने मुझे थप्पड़ मारा है। ओ खबीस इंसान, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को थप्पड़ मारने की? आपका बेटा औरत का पर्स छीन कर जा रहा था, इसलिए मैंने इसे थप्पड़ मारा था। अबू जान झूठ बोल रहा है। ये औरत का पर्स मैं नहीं बल्कि ये छीन रहा था। अगर यकीन नहीं आ रहा तो उस औरत को बुलाकर उससे पूछ लो, मुझे उसका घर पता है। ठीक है बेटा, तू जा और उस औरत को लेकर आ। अगर उसने कहा कि पर्स बिट्टू ने छीना था तो याद रखी बिट्टू तेरी खैर नहीं होगी। हाँ हाँ कुमार साहब, उस औरत को बुलवा लें, वो आपको सही गवाही देगी। मीठा वहाँ से निकलता है और उस औरत के घर पहुँच जाता है और उसे धमकी लगाता है कि अगर उसने सच बोला तो वो उसके बच्चों को अगवा करेगा। नहीं नहीं, मेरे बच्चों को कुछ मत कहना, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूँगी। ठीक है मेरे साथ चल और यही कहना है कि पर्स बिट्टू ने छीना था। वो मीठे के साथ चली जाती है और वहाँ पहुँच जाती है। लो जी आंटी आ गई। आंटी आप इन्हें सच सच बताएं कि आपका पर्स कौन छीन रहा था। ये तो सबको पता है कि ऐसी हरकतें कौन करता है। आज जब मैं वापस आ रही थी तो बिट्टू ने मुझे अकेला देखकर मेरा पर्स छीनने की कोशिश की। ये तो शुक्र है मीठा वहाँ आ गया और इसने मेरा पर्स बिट्टू से छीनकर मुझे दे दिया। आंटी क्या आप क्या कह रही हो? पर्स तो मैंने आपको मीठे से छीन कर दिया था। अपना मुंह बंद कर। ये औरत झूठ क्यों बोलेगी? मुलाजमों इसे साथ ले चलो और गोदाम में बंद कर दो। वो बिट्टू को अपने साथ ले जाते हैं। ये आपने झूठ क्यों बोला? मेरे बेटे ने तो आपको मीठे से पर्स छीन कर दिया था। भाई मुझे माफ कर दो, मैं मजबूर थी। मीठे ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने सच बोला तो वो मेरे बच्चों को अगवा कर लेगा। भाई मुझे माफ कर दो। सेठ बिट्टू को अपने गोदाम में ले जाकर बंद कर देता है, जहां हर तरफ महंगे महंगे मोबाइल के डब्बे पड़े होते हैं। भाई साहब, इस लड़के को गोदाम में नहीं लाना चाहिए था। यहाँ पर तो सारा स्मगलिंग का माल पड़ा हुआ है। अगर इसने बाहर जाकर बता दिया तो ये यहाँ से बाहर जाएगा तो ही बताएगा किसी को। इसे यहाँ पर भूखा प्यासा रखेंगे तो 3 दिन में मर जाएगा। फिर इसकी लाश को कहीं दफना देंगे। अब्बू जान इसकी लाश को दफनाएंगे नहीं बल्कि आग लगाएंगे। इसने मुझे थप्पड़ मारा था ना, मैं इसे भूखा प्यासा मार के इसे आग लगाऊंगा। हाँ बेटा तू ऐसा ही करी। अच्छा बोले तू 3-4 दिन इस गोदाम में ही रहेगा जब तक ये मर नहीं जाता। इसके मरने के बाद इसकी लाश को ठिकाने लगा कर ही तुझे छुट्टी मिलेगी। ठीक है मालिक, मैं ऐसा ही करूँगा। फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। अब बिट्टू को अपनी मौत नजर आती है क्योंकि उस जगह का किसी को पता नहीं होता जो उसे आकर बचाए। भोले भाई मुझे बहुत जोर का बाथरूम आ रहा है, मुझे खोल दे, मैंने वॉशरूम जाना है। अपनी सलवार में कर दे, मालिक की तरफ से ऑर्डर नहीं है तुझे खोलने का जब तक तू मर नहीं जाता। यार ये तो मुझे ऐसे मार कर ही छोड़ेंगे, मुझे कोई और हल निकालना पड़ेगा। भोले भाई मैं मरने तो वाला हूँ, मगर मेरे सोने और हीरो का क्या बनेगा जो मैंने मिट्टी में दफनाए हैं। क्या सोना और हीरे?
ये तूने कहाँ दफनाए हैं? भाई वो मैंने जंगल में दफनाए हैं। क्या जंगल? तू चल मेरे साथ और मुझे सोना और हीरे निकालने दे, मैं तुझे खोलता हूँ। वो लालच में आकर बिट्टू को अपने साथ जंगल में ले जाता है। भाई यही जगह है, आप यहाँ पर खुदाई करके सारा सोना और हीरे निकाल लो। वो खुदाई करने लग जाता है और बिट्टू वहाँ से निकल जाता है और गोदाम में आकर एक मोबाइल फोन का डब्बा उठा लेता है और अपने घर आ जाता है। वो सब उदास परेशान बैठे होते हैं। बिट्टू बेटा तू आ गया, हमने तुझे हर जगह ढूंढा मगर कहीं नहीं मिला। अब्बू जान मुझे कुमार सेठ ने अपने गोदाम में बंद कर दिया था। अब्बू जान वो मोबाइल की स्मगलिंग का काम करते हैं, मैं वहाँ से एक डब्बा उठा कर आया हूँ, इसे आप बाजार में बेचो, बहुत पैसे मिलेंगे। पर बेटा उसके लिए तो दुकान चाहिए। अब्बू जान आप अपने ऑटो रिक्शा को मोबाइल शॉप बना लो और इन्हें बेचो, मैं आपको रोज वहाँ से डब्बे ला कर दूंगा। ठीक 3 दिन बाद आप वहाँ पुलिस को ले आना, फिर हम उन्हें पकड़वा देंगे। पर बेटा वो गोदाम है कहाँ? बिट्टू उन्हें गोदाम का रास्ता समझा देता है और वहाँ से चला जाता है और वापस जंगल में आ जाता है। भोला अभी तक खुदाई कर रहा होता है। बोले ये क्या अभी तक सोना नहीं मिला तुम्हें? अभी तक तो नहीं मिला, तूने जगह तो ठीक बताई है ना? जगह तो यही थी। फिर एक काम करते हैं, टाइम ज्यादा हो गया है, अब कल आकर खुदाई करेंगे, तुम वापस मुझे गोदाम में ले जाकर बांध दो। वो वापस गोदाम में आ जाते हैं। भोला उसे बांधकर सो जाता है। अगले दिन बिट्टू का बाप ऑटो रिक्शा मोबाइल शॉप पर खूब मोबाइल सेल करता है। वहाँ सेठ और मीठा गोदाम में आते हैं। हाँ बोले सब ठीक है, रात इस मोटे ने तंग तो नहीं किया ना? नहीं सेठ साहब, ये तो आराम से चुपचाप अपनी मौत का इंतजार कर रहा है। ठीक है, हमने ठीक 3 दिन बाद सारा स्मगलिंग का माल दूसरे मुल्क में भिजवाना है। इस मोटे की लाश को भी उस स्मगलिंग के माल के साथ भिजवा देंगे। पापा जानी इसकी लाश को तो मैंने आग लगानी है। अरे बेटा तू क्यों इसकी लाश को आग लगाकर अपने हाथ खराब करेगा? भेजने दे इसे माल के साथ। ठीक है पापा जानी, मगर स्मगलिंग के माल में इसकी लाश को मैं भरूंगा। ठीक है मेरे बेटे, ये काम मैं तेरे से ही करवाऊंगा। चलो बिट्टू जंगल चल, वहाँ से सोना निकालना है। फिर वो जंगल की तरफ निकल जाते हैं और भोला खुदाई करता है और बिट्टू वहाँ से निकल जाता है और गोदाम से एक और डब्बा उठाकर घर ले जाता है। अब्बू जान मैं आज एक और डब्बा ले आया हूँ। बेटा मैंने भी ऑटो रिक्शा मोबाइल शॉप पर कल खूब मोबाइल सेल किए हैं। अब्बू जान परसों वो सारा स्मगलिंग का माल दूसरे मुल्क में भेजने वाले हैं, परसों आपने पुलिस को लेकर वहाँ पहुँच जाना है। ठीक है बेटा, कल तू 4-5 मोबाइल के डब्बे उठा, पैसा बहुत है इस काम में। ठीक है अब्बू जान, मैं अब चलता हूँ। बिट्टू वहाँ से चला जाता है और वापस जंगल में पहुँच जाता है। बोले भाई मुझे लगता है सोना इस जगह पर नहीं है, बल्कि उस दरख्त के पास है। चलो फिर उस दरख्त के पास खुदाई करते हैं। बोले भाई अभी तो टाइम ज्यादा हो गया है, अब चलते हैं, फिर कल आकर खुदाई करेंगे। ठीक है चलते हैं। रात में अक्सर मालिक छापा भी मारता है, उसके आने से पहले तुझे वहाँ बांध देता हूँ। वो गोदाम में पहुँच जाते हैं। इस तरह अगली रात भी भोला जंगल में खुदाई करता है और बिट्टू 4-5 डब्बे लेकर चला जाता है और अपने घर दे देता है। अबू जान कल इन्होंने स्मगलिंग का माल भिजवाना है, कल आप पुलिस को लेकर वहाँ आ जाओ। बेटा तू फिक्र ही न कर, कल मैं टाइम से पुलिस को लेकर आऊंगा। बिट्टू वापस जंगल आ जाता है। बोले इतनी देर लगा दी सोना निकालने में तुमने? मैं तो खुदाई कर कर के मर गया हूँ, अभी तक सोना नजर नहीं आया, और खुदाई करता हूँ फिर निकल आएगा। अरे भोले आप तो वाकई बहुत भोले हो, मैं तो मजाक कर रहा था, यहाँ पर कोई सोना नहीं है, बल्कि मैं तो हवाखोरी करने के लिए तुम्हें यहाँ
यहाँ पर लेकर आता हूँ। ये तू क्या बकवास कर रहा है? खुदाई कर कर के मेरा 20 किलो वजन कम हो गया और तेरी हवाखोरी खत्म नहीं हो रही। तुझे तो मैं अब ले जाकर ऐसा बात दूंगा कि अब गोदाम से तेरी लाश ही निकलेगी। वो गोदाम में आकर बिट्टू को बांध देता है। फिर जब अगला दिन निकलता है तो वो सब स्मगलिंग माल लोड करवाने गोदाम आते हैं। पापा जानी ये मोटा तो अभी तक मरा नहीं, इसे माल के साथ कैसे भेजेंगे? बोले ये अभी तक मरा क्यों नहीं है? तू इसे खाना तो नहीं खिलाता रहा? मालिक आपके सर की कसम, मैंने इसे एक नवाला भी नहीं खिलाया। अब्बू जान इसे माल के साथ भेजना जरूरी है। क्यों ना मैं इसके पेट में चाकू मार के इसका काम तमाम कर दूं। मेरे बदले की आग भी ठंडी हो जाएगी। हाँ मेरे बेटे ठीक है, कर दे इसका काम तमाम। रुक जाओ, टाइम इसका नहीं बल्कि तुम्हारा तमाम होगा। स्मगलिंग का माल बेचते हो, तुम्हें तो थाने में बंद करके तुम्हारा काम तमाम करता हूँ ना मैं यार। इंस्पेक्टर साहब आपको इस जगह का कैसे पता लगा? ये सब मैंने बताया है। तुम्हारा बोला रोजाना रात मुझे जंगल में ले जाता था सोना निकालने। क्यों बोले तू इसे लेकर जाता था? मालिक इसने मुझे सोने और हीरो की लालच दी थी। मैं इसकी बातों में आ गया और इसे सोना निकालने के लिए जंगल में ले गया था। आपका बोला सोना निकालने में मशरूफ होता था और मैं पीछे से घर जाकर अपने घर वालों को गोदाम का पता बता दिया और ये भी बता दिया कि आप स्मगलिंग का काम करते हो। बोले तूने हमें मरवा दिया, तुझे तो मैं नहीं जोड़ूंगा। अब तुम बचोगे तो ही ना, अब सारी जिंदगी जेल में सड़ना। उनके सारे मोबाइल थाने में जमा करवा दो। और बिट्टू अगले दिन से ऑटो रिक्शा मोबाइल शॉप पर मोबाइल बेचने लग जाता है।